100% আয়ুর্বেদিক আর কার্যকরী। এমন কিছু হয় নাকি? আমি হলাম ডাবর হানিটাস, আয়ুর্বেদিক শক্তিতে ভরপুর, অর্থাৎ কাশি থেকে দ্রুত আরাম, ক্লিনিক্যালি প্রুভেন। ডাবর হানিটাস দেয় সম্পূর্ণ আরাম, কাশির পুরো বিরাম ন্যাচারালি। ফিরে এলাম বিরতির পর। বীরভূমের 7 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গম্ভীরা সেতুতে ফাটল, বন্ধ যান চলাচল, শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমানের কাকসার শিবপুরে অজয় নদের উপর ভেঙে যায় সেতু, সেখানে আপাতত তৈরি হয়েছে অস্থায়ী জেটি, শুরু হয়েছে নৌকা চলাচল। কোথাও সেতুতে ফাটল, কোথাও জলের পরে ভেঙে গিয়েছে সেতু, তার উপর দিয়ে অস্থায়ী জেটি তৈরি করে ঝুঁকির যাতায়াত। বর্ষার মধ্যেই একাধিক জেলায় দুর্ভোগ চিত্র। বীরভূমে লোহাপুরের 7 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর গম্ভীরা সেতুতে ফাটল দেখা গিয়েছে, বন্ধ যান চলাচল, শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। সেতু সংলগ্ন রাস্তা 15 দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গ সংযোগকারী 150 থেকে 200 ফুট লম্বা গম্ভীরা সেতুতে ফাটলের বিষয়টি রবিবার নজরে আসে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই যান চলাচলের কারণেই সেতুতে ফাটল দেখা দিয়েছে। থামানো যাবে না, তো রাস্তা থামানো যেতে পারবে না। रास्ता में আমরা এক্সেল রোড के हिसाब से डिजाइन করি, যখনই এটা এক্সেল রোড के हिसाब से डिजाइन का আমরা ওভারলোডিং के हिसाब से जो डिजाइन করতে পারি না, তাই কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একটু ওভারলোডিং এর জন্য এগ্রি করে না, ওভারলোডিং ইজ দিস ইজ দ্য স্টেট প্রবলেম। প্রশাসনের পাল্টা দাবি, ওভারলোডিং আটকাতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বীরভূমে জেলা শাসক মমিতা গোতারা জানিয়েছেন, সেতুতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গাড়ির গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে কয়েকদিন আগে জলের স্তরে ভেঙে যায় পশ্চিম বর্ধমানের কাকসার শিবপুরে অজয় নদের উপর অস্থায়ী সেতু। নদীর এক পাড়ে পশ্চিম বর্ধমানের কাকসা, অন্য পাড়ে বীরভূমের ইলামবাজার। সেতু ভেঙে যাওয়ায় দুপাড়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাজ চালানোর জন্য আপাতত তৈরি হয়েছে অস্থায়ী জেটি, শুরু হয়েছে দুপাড়ে নৌকো চলাচল। প্রাণীর ঝুঁকি নিয়ে অস্থায়ী জেটির ওপর দিয়ে সাইকেল, মোটর বাইক নিয়ে নৌকোয় উঠছেন যাত্রীরা। কয়েক কিলোমিটার দূরে পাকা সেতু তৈরি হচ্ছে, দ্রুত সেই কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অলরেডি যেটা সাইড ব্রিজ যেটা করছে, যাতে সেটা তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে সমস্ত মানুষ খুব উপকৃত হবে। একদিন করে চলছে, একদিন করে আবার ভেঙে যাচ্ছে, যাচ্ছে, এভাবে ভিড় ভাড়টা হচ্ছে। কবে মিটবে দুর্ভোগ, সেদিকেই তাকিয়ে গ্রামবাসীরা। গোপাল চট্টোপাধ্যায়, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজীব চৌধুরীর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। নিবেদন করছে প্রায় কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ প্রশ্ন বিচিত্রা। শিরোনাম এই মুহূর্তে। শিরোনাম এই মুহূর্তে। আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। ক্লাস 12 এর সকল মেধার ছাত্রছাত্রীদের জন্য 2018 সংসদ মক টেস্ট প্রশ্নাবলী সংযোজিত আনসার ফর অল হাইলাইটেড এডিশন। আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। আমি সৌগত দাস, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে প্রায় মাঠে কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্ন বিচিত্রা, বই দুটির অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। হ্যালো মার্টি, আই হোপ ভারুন পাঁচ বোলারকে ফেস করতে পারে। মিসেস প্যাটেল অফ প্রিপেয়ার। ও যদি ইনজিওর্ড হয়ে পড়ে, এটা তো বেশ রিস্কি। ওনার ফার্স্ট ও পার্সোনাল রিস্ক তো আছে। সেটা জানি, কিন্তু ভারুন আপনি মিউচুয়াল ফান্ডসে ইনভেস্ট করেন? অফকোর্স সিন্স 2005, কিন্তু এমন কি মিউচুয়াল ফান্ডসে আছে মার্কেট রিস্ক, ওখানেও তো ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সচিন, মিউচুয়াল ফান্ডসে ইনভেস্ট তাদেরই করা উচিত যারা রিস্ক নেওয়ার জন্য তৈরি আছে। মিউচুয়াল ফান্ড হোক মার্কেট, সবারই রিস্ক নিতে তৈরি থাকা উচিত। Good point. মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনার সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত দস্তাবেজ মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। এখন সুন্দর এবং রেখানো চুলবান নতুন আনমোল জ্যাসমিনের সাহায্যে। নারকোলের পুষ্টি আর জ্যাসমিনের গুণ এখন আনমোল দামে 100 ml মাত্র 30 টাকায়। আজকাল
বাচ্চাদের জন্য কত সব পসিবিলিটিস ওপেন আছে, আর এরা বড় হয়ে অনেক কিছুই হতে পারে। তাই ব্যাপারটা যখন জটিল হয়, আমরা এদের সব কিছু দিতে চাই along with Pro, যাতে আছে DHA, whey protein, probiotics and other essential nutrients for growth. From Nestle. থেকে দ্রুত আরাম পান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সাথে কাজ করে 7 সেকেন্ডে। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও আমাদের চেনা বিপদ ডেঙ্গুর মশাকে ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখবেন, ডেঙ্গুও কিন্তু বিপজ্জনক। ঝোপঝাড়, আবর্জনা, নর্দমা এবং অন্যত্র জমা জলে ডেঙ্গুর মশা জন্মায়। ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করতে কোথাও জল জমতে দেবেন না এবং মনে রাখবেন, সপ্তাহে একদিন চারপাশ দেখে নিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শুভ হোক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স আপনার জন্য নিয়ে এসেছে বিশেষ আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার বদলে থাকছে 50% ডিসকাউন্ট। হিরে ও प्रोटेक्शन के साथ स्टे फ्रेश, स्टे प्रोटेक्ट। जो सप्लायर्स है ऑलरेडी, उनका जो डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, ऑलरेडी उस पर उनका असर पड़ चुका है। चीन पर निर्भरता खत्म होगी तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होगा। ये जरूरी है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। शुरुआत में थोड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन लोग तैयार हैं, क्योंकि चीन से बदला लेना सिर्फ सेना का ही कर्तव्य नहीं। मुंबई से राजीव रंजन और दिल्ली से भूपेंद्र सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट CBA। जी न्यूज ने आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं, बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं और बहुत सारे हैशटैग्स दिए हैं। आपको याद होगा, हमने आपको टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा हैशटैग दिया था, ये शब्द हमने आपको दिया था, ये स्लोगन हमने आपको दिया था। हमने आपको डिजाइनर पत्रकार के बारे में बताया था, हमारे देश में ऐसे भी लोग होते हैं। और अब जब ये घटना हुई तो हमने आपको एक और स्लोगन दिया था, वो था हिंदी चीनी बाय बाय। आप लोगों को बड़ा पसंद आया था और आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय अब आ गया है, क्योंकि हमें अब ये तय करना है कि हमें देश का सम्मान चाहिए या फिर चीन का सामान चाहिए। ये मुहिम हमने ही शुरू की थी और अब इसका असर पूरे देश से दिखने लगा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। वैसे तो सरकार ने अपने ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए जो पहल की है, उससे हर साल सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए के ही प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जबकि भारत में ई-कॉमर्स का बाजार करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन ये पहल चीन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि जनता से पहले सरकार के स्तर पर चीन के सामान का बहिष्कार करने की पहल अब हो चुकी है, क्योंकि पहले जनता ये कहती थी कि सरकार पहले कुछ करेगी फिर हम उसके बाद तय करेंगे, सरकार तो सब चीन से खरीदती जा रही है। तो अब सरकार ने पहल कर दी है, अब जनता की बारी है। शुरुआत सिर्फ छोटे से पोर्टल से हुई है, 25,000 करोड़ रुपए का काम यहाँ से होता है, लेकिन धीरे 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 ये 25,000 करोड़ रुपए 25 लाख करोड़ रुपए भी बन सकते हैं, अगर इसमें 137 करोड़ भारतीयों की मर्जी और फैसला शामिल हो जाए। क्योंकि आप अपनी ताकत को अभी समझते नहीं हैं। 137 करोड़ भारतीयों का ये जो बाजार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और किसी भी देश के लिए ये बहुत दुखदाई होगा अगर इतने बड़े बाजार से उसे बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ हम 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको रशिया लेकर अमूल मलाई पनीर। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक। रूस ने कहा भारत चीन खुद विवाद सुलझाने में सक्षम। सीमा पर पीछे हटने को तैयार हुआ चीन। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सौदों को लेकर हुई अहम बातचीत। राजनाथ सिंह ने कहा रूस दौरे से पूरी तरह संतुष्ट। चीन से सीमा विवाद के बीच ले पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। चीनी सेना से झड़प में घायल हुए जवानों से की मुलाकात, हालात का लिया जायजा। राहुल गांधी ने एक बार फिर किया सेना का अपमान, कहा चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। पीएम मोदी की विदेश नीति रही फेल।
आपको दिखाएंगे कैसे एक चाय वाले की बेटी बनी फाइटर पायलट। लेकिन पहले बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कोरोना बम की। शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 1-2 नहीं पूरे 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कोरोना का कहर। अपनी टीम को बचा नहीं पाए इमरान खान। पाकिस्तानी टीम पर कोरोना बम। फखर जमान कोरोना पॉजिटिव। इमरान खान कोरोना पॉजिटिव। काशिफ भट्टी को हो गया कोरोना। मोहम्मद हफीज कोरोना पॉजिटिव। मोहम्मद हसनैन को कोरोना। मोहम्मद रिजवान कोरोना पॉजिटिव। हारिस रऊफ को कोरोना। शादाब खान कोरोना पॉजिटिव और हैदर अली को भी कोरोना। ये वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके। पाकिस्तान में कहर ढा रहे कोरोना ने इमरान की टीम को हिट विकेट कर दिया। इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी टीम के 10 खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। बिना एक भी गेंद खेले पाकिस्तान की पूरी टीम अब घर लौटने को मजबूर हो चुकी है। अफरीदी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब बारी पाकिस्तान की टीम की है। इसी महीने के आखिरी में पाकिस्तान को इंग्लैंड में टेस्ट और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना होना है। 29 खिलाड़ियों की टीम में से 10 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित होने के बाद दौरा मुश्किल में पड़ गया। सबसे पहले पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। सोमवार को 3 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब कुल 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन इमरान कोरोना को मुसीबत मानने को तैयार नहीं। कंगाल पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ इमरान भारत को मदद देने की अपील करते नजर आते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी टीम में कोरोना बम से एक बार फिर इमरान को बेनकाब कर दिया है। झूठ बोलना और पकड़ा जाना इमरान की आदत है, लेकिन हर बार की तरह इमरान इस बार भी वही बोलेंगे कि ऑल इज वेल। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे आपको दिखाएंगे कैसे चाय वाले की बेटी फाइटर पायलट बन गई। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाबा रामदेव ने दरअसल कोरोना की बूटी ढूंढ ली। बाबा का दावा है कि उनकी दवा खाने से कोरोना का मरीज 7 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबा की कोरोनल पर सवाल उठे तो उसका भी बाबा रामदेव ने जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। बाबा को मिल गई कोरोना की बूटी। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए 7 दिन में भागेगा आदमखोर वायरस। जिन पेशेंट्स का 280 तक हो गया था विद इन वीक वो 2, 3, 4, 5 पर आ गया वो लेवल। साइटोकाइन्स के तूफान को एकदम से खत्म कर दिया। 600 रुपए में वायरस का इलाज। बचाव के लिए हमने ये कोरोनिल भी खा सकते हैं 3-3 गोली। जिनको है वो 3 बार, जिनको नहीं वो 2-2 खाएंगे, तो इससे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। कोरोनिल से भागेगा कोरोना। मौत के वायरस ने 4,70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। पूरी दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढ रही है और इधर बाबा रामदेव ने कोरोना की बूटी खोज निकाली है। बाबा रामदेव का दावा है कि उनकी दवा से 100% कोरोना का मरीज ठीक हो जाएगा। दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कोरोना वायरस की कोई दवा निकले। विद इन वीक वो 2, 3, 4, 5 पर आ गया वो लेवल। साइटोकाइन्स के तूफान को एकदम से खत्म कर दिया। ये बड़ी बात है। और फिर उसके अंदर जो CRP लेवल है वो भी, बाकी जितने भी जो जांच पड़ताल होती है कि क्या क्या अंदर गड़बड़ी हो रही है कोरोना के कारण से, उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को एकदम कंट्रोल करती है औषधियां और आदमी को उससे लड़ने के लिए उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा। कोरोना की दवा पर 2 बार ट्रायल हुआ है।
100 लोगों पर दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया गया। 3 दिनों के अंदर 100 में से 69% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। 7 दिनों के भीतर 100% मरीज ठीक हुए। रामदेव ने दावा किया है कि दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट। कोरोनिल को बनाने में सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया गया। इस दवा को बनाने में खास औषधियों का इस्तेमाल हुआ है और बाबा का दावा है कि आदमखोर वायरस कोरोनिल से भाग जाएगा। इसको बनाने में मुलैठी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और ज्वासारी का इस्तेमाल किया गया। कोरोनिल के अंदर है ये, इसके अंदर पूरी इसकी मात्रा लिखी हुई है। कोरोनिल के अंदर 400 mg एक टैबलेट के अंदर जो है, मान लीजिए तो उसके अंदर 400 मिलीग्राम ये है, तो इसके अंदर 200 गिलोय है, तो 200 मिलीग्राम इसके अंदर अश्वगंधा है, तो 50 तुलसी है। तो ये ऐसे अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय, उसका ये एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट उसका निकाल करके हम तैयार करते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स की दृष्टि से देखा जाए या फाइटोमेटाबोलाइट्स की दृष्टि से देखा जाए तो 100 से ज्यादा इसमें फाइटोकेमिकल्स जो जड़ी बूटी के अंदर होते हैं, यानी ये रासायनिक संघटना है इसकी। इसमें कोई केमिकल नहीं है, 0% केमिकल है, कोई एलोपैथी नाम का कोई द्रव्य नहीं है इसके अंदर। इस दवा को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑर्डर मी ऐप अगले हफ्ते लॉन्च होगा। इस ऐप के जरिए कोरोना की दवा कोरोनिल के अलावा पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन इस बीच भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से कोरोना की दवा के प्रचार पर फिलहाल रोक लगाने को कह दिया है। और जो उसको आयुष मंत्रालय को जो उनको जवाब देना था वो 100% हमने जवाब दे दिया। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना चाहते। हम अपना काम कर रहे हैं और पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ कर रहे हैं और इसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उनको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद ये किसी भी तरह का विवाद है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर बाबा रामदेव के दावों में हकीकत है तो बाबा की दवा कोरोना महामारी के बीच वाकई संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे आपको घर बैठे कराएंगे जगन्नाथ यात्रा के दर्शन, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जो सभी को प्रेरणा देती है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक चाय वाले की बेटी फाइटर पायलट बन गई। 25 साल से चाय बेच रहे पिता सुरेश के लिए बेटी का लड़ाकू विमान की पायलट बनना फादर्स डे पर सबसे बड़ा तोहफा है। देखिए रिपोर्ट। चाय वाले की बेटी की आसमान में छलांग। चाय वाले की बेटी बनी फ्लाइंग ऑफिसर। साल से चाय बेचने वाले पिता को फादर्स डे का तोहफा। हिंद की बेटी को देश का सलाम। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नीमच की रहने वाली आंचल गंगवाल ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। हौसले अगर बुलंद हो तो मुश्किलें आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आंचल है। आंचल गंगवाल देश के उन 123 वायुवीरों में शामिल हैं जो अब हिंद के आसमान में निगहबान हैं। मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली आंचल के पिता 25 साल से चाय की दुकान चलाते हैं। छोटी सी दुकान पर चाय बेचने वाले इस पिता के लिए ये पल गर्व से भरा है। जिस बेटी की पढ़ाई के लिए कई बार उधार लेकर फीस दी, आज उस बेटी ने पिता को फादर्स डे पर सबसे बड़ा तोहफा दिया। हमारे जैसे छोटे क्लास के लोगों को समस्याएं तो आती है, संघर्ष तो होता है, तकलीफें आती है, लेकिन क्या है उससे हमने हिम्मत नहीं हारी, बच्चों को भी हिम्मत नहीं हारने दी, उनको हमेशा मोबिलाइज करते रहे ताकि क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। पूरा प्रदेश क्या पूरा देश बहुत खुशी महसूस कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 24 साल की आंचल बतौर फाइटर पायलट वायुसेना में कमिश्निंग हो गई, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। पिता की आय इतनी नहीं थी कि अच्छी कोचिंग ले सके। ऐसे में आंचल ने कड़ी मेहनत को अपना हथियार बनाया। इस सफलता से पहले 5 बार आंचल वायुसेना की परीक्षा में सफल नहीं हो पाई,
लेकिन देश सेवा की लगन ऐसी थी कि आखिरकार छठी बार उनकी मेहनत रंग लाई। सबसे मुश्किल टाइम पीरियड उस लड़की के लिए तब था जब वो मेरे पास आई। उसने बताया सर मेरे पास 24 दिन है, मुझे 9 किलो वजन कम करना है। अब 24 दिन में 9 किलो वजन कम करना और आपको इसके लिए सेलेक्ट होना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं CDS बहुत ही टफ एग्जाम है। और आज ये नीमच के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि इस बालिका ने नीमच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 2013 में एक मासूम ने केदारनाथ में लोगों को मौत के मुंह से निकालते हुए वायुवीरों को देखा था। तब उन आंखों में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए लड़ने का सपना था। वो सपना आज हकीकत बन चुका है। वायुसेना में आने के लिए आंचल ने 2 नौकरियां छोड़ दी और आखिरकार आज वो देश की हजारों बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी है। इस सफलता पर शिवराज सिंह चौहान ने भी आंचल को बधाई दी। शिवराज ने लिखा, नीमच में चाय की दुकान लगाने वाले सुरेश गंगवाल जी की बेटी आंचल अब वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाएगी। मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली बेटी आंचल अब देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए अनंत आकाश की ऊंचाइयों में उड़ान भरेगी। बेटी को बधाई और आशीर्वाद। एक चाय वाले की बेटी की सफलता पर देश को गर्व है। आंचल ने दिखा दिया कि अगर ठान लो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। आंचल गंगवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हिंद की बेटियां किसी से कम नहीं। भारत मां की रक्षा के लिए हिंद की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और समय आने पर दुर्गा बनकर दुश्मनों का संहार भी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10वें कदम में आगे आपको दिखाएंगे हज पर कोरोना का साया। लेकिन पहले बात जगन्नाथ रथ यात्रा की। यात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन कोर्ट के आदेश के हिसाब से भक्तों ने घर बैठे ही यात्रा के दर्शन किए। आप भी कीजिए। और इस तरह आस्था में डूबी हुई ऐतिहासिक पुरी की जगन्नाथ यात्रा की शर्तों के साथ शुरुआत हुई। पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से मंदिर परिसर की सफाई कर जगन्नाथ यात्रा को रवाना किया। संस्कृति, धूमधाम, भव्यता और अलौकिकता पुरी की रथ यात्रा की विशेषता रही है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की खूबसूरती से सजे ये 3 रथ आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं और इन रथों को व्यापक झांकी के साथ सजाया गया। ये पहली बार है जब कोरोना महामारी की वजह से पुरी में भक्तों की कम तादाद देखने को मिल रही है। पुरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा हमेशा से ही धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा की पहचान रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अहमदाबाद में सपरिवार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। कोरोना महामारी को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगाई, इसलिए सिर्फ मंदिर परिसर में ही रथों की परिक्रमा होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई दी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले बाकायदा पूरे मंदिर परिसर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक सैनिटाइज किया गया था। दरअसल जगन्नाथ मंदिर का एक सेवाधारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए जो भी इस रथ यात्रा में शामिल हुआ सबका कोरोना टेस्ट कराया गया। पूरी सुरक्षा के साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। पुरी में 24 जून दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने घरों में ही बैठकर ऐतिहासिक रथ यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हज की। इस बार कोरोना की वजह से भारत से कोई भी हज पर नहीं जा पाएगा। सऊदी अरब ने अपने देश के बाहर के लोगों की हज यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ सऊदी अरब के लोग ही इस बार हज कर पाएंगे। हर साल सऊदी अरब में होने वाले हज पर भारत के लोग नहीं जा पाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से ये फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से हज यात्रा को लेकर दुनिया भर में चल रही अटकलों को खत्म करते हुए सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इस साल बहुत कम मुस्लिमों को हज करने की इजाजत मिलेगी।
सभी हज यात्री सऊदी अरब में रह रहे लोग ही होंगे। सऊदी अरब के बाहर के हज यात्रियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। दुनिया भर से हर साल 20 लाख लोग हज करते हैं। अकेले भारत से 1 लाख से ज्यादा लोग हज पर जाते हैं। बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। सऊदी अरब ने अपनी स्थापना के 90 साल के अंदर कभी भी हज यात्रा को रद्द नहीं किया। सऊदी अरब का शाह परिवार कई पीढ़ियों से मक्का में आयोजित होने वाली हज यात्रा की जिम्मेदारी संभालता है। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि ये फैसला लोगों की सेहत को देखते हुए हज को सुरक्षित तरीके से कराने के लिए लिया गया है। केवल सऊदी अरब में